Students, today we are going to study or learn the chapter number 5th, Should Wizard Hit Mummy by John Updike. So before you read, there are two lines. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult mollification she rages during the story session with her father. So this story is about the worldview opinion of a little girl and the question that she raises during the story session when her father tells her stories, some fabricated stories, and the question that she raises are quite difficult to answer. So let's see how the story suggests this. In the evening and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. This custom began when she was itself nearly 2 years old and his head felt empty. So this is the custom. Jack, a father, was in the habit of telling the story to his daughter during Saturday naps when he felt like sleeping. So he tells story to his daughter, and this is a custom. And this tradition starts when his daughter was 2 years old, and now the process of telling story is already 2 years old. It means the daughter is of 4 years, and now his head felt empty. After telling so many days, his head felt empty. Stories are ended. सभी stories खत्म हो चुकी हैं. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, it may be Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, had some problem and went with it to the wise old owl. तो दिस इज द बेसिक टेल. बेसिक टेल एक एनिमल के बारे में होती है जिसका नेम होता है रोजर. तो रोजर तो कांस्टेंट है और साथ में कभी रोजर फिश, कभी रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक, इस तरह की नेम वो ऐड करता है स्टोरी में. और सेम ही स्टोरी वो रोज अपनी लड़की को सुनाता है, अपनी डॉटर को सुनाता है. और इस क्रिएचर को, इस कैरेक्टर को कुछ प्रॉब्लम होती है एंड विद दिस प्रॉब्लम ही वेंट टू द वाइज इंटेलिजेंट ओल्ड आउल, a bird. The owl told him to go to the wizard. Wizard is a person having magical powers. जिसमें जादुई शक्ति होती है उसे हम जादूगर बोलते हैं. मैजिशियन एक डिफरेंट वर्ड है जो ट्रिक शो करता है. And the wizard performed a magic spell that solved the problem. And that wizard performed. He spoke a magic spell. He chants some words that is supposed to have some magic power and solve the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger's creature had. But against his work, he asked for money. He asked for penny, and the number of penny is greater, more than the Roger creature had. तो पैसे हैं वो ज़्यादा मांगता है जितने रोजर क्रिएचर के पास यूजुअली होते हैं. But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found. But he also tells the creature where he could get एक्स्ट्रा पेनी, जहाँ उसे एक्स्ट्रा पेनी मिल सकती है उस रास्ते को भी वो बताता है, उस मेथड को भी वो डिस्क्राइब करता है. द रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर एंड आफ्टर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम, जो रोजर क्रिएचर होता है, ही प्लेड सो मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स इन द फॉरेस्ट एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन. तो जैसे ही उसके डैडी रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, काम से वापस लौटते हैं बॉस्टन से, सिटी, बॉस्टन एक सिटी है जहां से उसके फादर काम करके लौटते हैं ट्रेन से. और जैसे ही विसल साउंड आती है उस ट्रेन की, ही रिटर्न टू हिज होम. Jack described their supper, and after in the story, Jack the father described their supper. Supper is the last meal of the day. It may be dinner or anything taken after dinner. तो हम सपर बोलते थे. And the story was over. And after this story was over. Working his way through this game was especially fatiguing on Saturday. तो ये जो
प्रोसेस है। सैटरडे के दिन जो वो रिलैक्स करना चाहता है तो फटीग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, टायर्डनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो काफ़ी ट्रबलसम ये स्कीम बन जाती है, ये प्लानिंग होती है उसकी स्टोरी टेलिंग वाली। बिकॉज वो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि अब जो कि डॉटर है नेवर फेल अस्लीप, शी डजंट गो इन स्लीप, सोती नहीं है, बेड पे होती लेकिन सोती नहीं है। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और जब उसे इस प्रोसेस का पता है कि सी विल नॉट फॉल अस्लीप, तो जो राइट है, जो ओकेजन है, जो प्रोसेस है वो फ्यूटाइल, यूजलेस हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं रह जाता है। द लिटल गर्ल नॉट सो लिटल एनी मोर, जो बच्ची अब इतनी छोटी नहीं है, सी इज 4 नाउ। द बम्प्स आर फिट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, इट इज अबाउट हर हाइट की हाफ वे डाउन द बेड अराउंड 3 feet। तो जो बम्प, जो रेज पार्ट वो बनाती है अंडर द कवर, अंडर द बेडशीट, with their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick। तो बेड पे जब सोती है, जब वो अक्सर सिक होती है, इल होती है, या फिर नैप्स के लिए फॉर वाइल व्हेन शी स्लीप्स, थोड़ी देर बहुत देर के लिए जब सोती है, झपकी लग जाती है, झपकी स्मॉल स्लिप को हम नैप बोलते हैं। had at last arranged herself and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, जो drawn shades है कर्टेन से, वहां से सनलाइट अंदर आती है रूम से, तो वो फेस शॉन करता है। इट डिड नॉट सीम फंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, और ऐसा फंटेस्टिक, ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ नहीं लगती उसे, कोई ऐसा इमेजिनेशन भी नहीं है कि समथिंग वंडरफुल विल टेक प्लेस एंड शी वुड फॉल अस्लीप। तो ये जो अकरिंग है ये हो जाएगा, ऐसा उसे लगता नहीं है। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, कि जैसे 2 years की ओल्ड बच्चा बेबी होता है वो सो जाता है, तो इस तरह से वो नहीं रही। इन्फेंट थोड़ी बड़ी हो गई है, 4 साल की, तो ऐसा उसे नहीं लगता कि वो सो जाएगी अब। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, जो उसका ब्रदर है बॉबी, वो भी 2 years ओल्ड है, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, तो अपने बॉटल के साथ में वो पहले ही सो चुका है। जैक आस्क हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, और जैक पूछता है अपनी डॉटर से कि स्टोरी किस कैरेक्टर के बारे में हो, किस क्रिएचर के बारे में हो। रोजर जो स्क्वीज हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, जो ने अपनी आईज शट की, एक्चुअली स्क्वीज की, आंखों को पूरी तरह से प्रेस किया, स्क्वीज किया बंद करने के लिए, और स्माइल करता है, थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग। तो जो है लड़की वो इस तरह से एक्सप्रेशन दे रही है कि सी वॉज थिंकिंग, कि गहराई से वो पॉन्डरिंग कर रही है, एक प्रकार से डीप थिंकिंग कर रही है। हर आईज ओपन्ड her mother's blue, she has blue eyes like her mother and she says skunk, she said firmly, बड़ी फॉर्मली कहती है, डिटर्मिनेशन साथ में कहती है, एक बिल्कुल डिटर्मिन होकर के, yes she has made her mind to listen a story of skunk, तो skunk उसने आज प्रोनाउंस किया। a new animal they must talk about skunks at nursery school, कोई नया एनिमल है skunk जिसके बारे में नर्सरी स्कूल में, she has started going in school, तो स्कूल में डिस्कस हुआ वर्ड। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, तो जैसे एक फ्रेश हीरो, एक न्यू क्रिएचर मिला है, मोमेंटरीली जो जैक है वो मोमेंटरीली फॉर ए वाइल स्टिर हो जाता है, मूव हो जाता है, एक प्रकार से फोर्स टू थिंक, इमेजिन करने के लिए कंपेल होता है, और एक क्रिएटिव एंथुजियाज्म में वो चला जाता है। जैसे क्रिएटिव, ही इज इमेजिनेटिंग द स्टोरी, या ही इज फैब्रिकेटिंग द स्टोरी विद एंथुजियाज्म, विद सम जील, ऊर्जा के साथ में, एनर्जी के साथ में। ऑल राइट ही सेड वंस अपॉन ए टाइम, एंड ही स्टार्टेड स्टोरी कि वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, वुड मीन्स फॉरेस्ट, जंगल की बात है बहुत पुरानी। देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, तो एक टाइनी लिटिल क्रिएचर है, बहुत स्मॉल से क्रिएचर है जिसका नाम होता है रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, एंड ही इमिट्स वेरी बैड स्मेल, बहुत बुरी गंध आती है। Yes, Joe said, and Joe says yes, it means she knows, कि वो जानती है कि स्मेल फाउल होती है, बदबू होती है। He smelled so bad that none of the little other woodland creature would play with him. He smelled so bad, इतनी बुरी बदबू आती है कि कोई भी वुडलैंड क्रिएचर, कोई फॉरेस्ट के एनिमल उसके साथ में प्ले नहीं करता है, खेलता नहीं है। जो looked at him solemnly, तो जो बड़े solemnly, सीरियसली उस लड़के की तरफ देखता है, डॉटर की तरफ देखता है। She hadn't foreseen this, उसने आज से पहले इस चीज़ को कभी इमेजिन नहीं किया था।
whenever he would go out to play. और जब भी वो खेलने के लिए बाहर निकलता है, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, बहुत ही जेस्ट के साथ में, एनर्जी के साथ में स्टोरी स्टार्ट करता है, रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, इसमें जॉन ओप्टिगन ने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में भी ऐड कर दिया है। तो अपनी जो ह्यूमिलिएशन ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की जो ह्यूमिलिएशन इंसल्ट्स, उनको रिमेंबर करते हुए उस स्टोरी को कोरिलेट करने की कोशिश करता है। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल वुड क्राई, और सारे जो टाइनी स्मॉल स्मॉल एनिमल्स वुड क्राई, ओहो हियर कम्स रोज स्टिंकी स्कंक, स्टिंकी स्मेलिंग फाउल, बदबूदार जो होता है, कि यहाँ आ गया स्कंक जिसमें स्टिंग की स्मेल आ रही है। एंड दे वुड रन अवे, एंड दे वुड रन अवे, एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और जो स्कंक है वो अलोन रह जाता है। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन, एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears। तो यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी भी कर, स्टोरी के साथ, टेलिंग के साथ में एक्टिविटीज भी होती हैं। तो यहाँ पे उसे टीयर्स शो करने हैं, तो उसने उसके चिक को प्रेस किया, लोअर किया, ताकि एक वे बने, जहाँ फोर फिंगर समझते हैं आप, जो फर्स्ट फिंगर होती है हमारी आफ्टर थंब, तो उसे उसको प्रेस किया और एक नोज के पास एक कोर्स बनाया, एक वे बनाया जहाँ से रोजर स्कंक के टीयर्स निकले होंगे। इमेजिनेशन में उस स्टोरी को एक तरह से विविड बना दिया ताकि बच्चा थोड़ा ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाए। Want to see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice। अब जो है she was used to listening such kind of story daily, इस तरह स्टोरी वो रोज सुनती है, तो उसने आज थोड़ा रफन वॉइस में, बच्चा है कई बार इस तरह से बिहेव करता है, तो बड़ी रफन वॉइस में, एक रफ वॉइस में वो कहती है कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा, बिकॉज शी नोज द बेसिक टेल। बेसिक टेल उसे पता है कि स्टोरी किस तरह से होती है। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टॉग एज हर लेग्स स्विच टेंसली। तो बेड पे बैठी हुई है और उसके जो लेग्स है वो टेंस होकर स्विच हो गई हैं, थोड़े इरेक्ट हो गई, सीधी टाइट हो जाती हैं। हम थोड़ा सा एंथुजियाज्म या एक प्रकार से थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट शो करते हैं व्हाइल लिसनिंग द स्टोरी और टेलिंग द स्टोरी। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और ये देख करके जो फादर है वो प्लीज फील करता है, ही फेल्ट हैप्पी। He was telling her something true, because now he is telling something true, his own life story he is telling to his daughter, something she must know, कि उसे पता होना चाहिए, and had no wish to hurry on, और यहाँ पे वो he is taking time, जल्दी नहीं कर रहा है। But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork। तो जैसे नीचे से डाउनस्टेयर से एक चेयर के स्क्रैप होने की एक रबिंग साउंड आई, तो उसने रियलाइज़ किया कि उसे अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करनी है और लिविंग रूम जो वुडवर्क है, जो फर्नीचर, उसको पेंट करना है। वेल ही वॉक अलॉन्ग वेरी सैडली बट ही गॉन विथ स्टोरी सुनाने में बिजी है, नीचे नहीं जाता है, कि जो रोज स्कंक है वो वेरी सैडली, बड़ी दुखी होकर के चलता है। एंड कम टू अ वेरी बिग ट्री, और एक बड़े पेड़ के पास आता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज आउल, बिल्कुल ट्री के टिप टॉप, ऑन द वेरी टॉप पार्ट, एक एनॉर्मस बिग इन साइज, बहुत बड़ा ह्यूज एक वाइज ओल्ड आउल है, बड़े साइज का। गुड मिस्टर आउल, रोज स्कंक सेड, और रोज स्कंक कहता है कि ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, और वो अपनी प्रॉब्लम शो करता है कि आई स्मेल सो बैड एंड ऑल द एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, नोबडी प्लेज विद मी, कि कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता है। So you do, the owl said, and owl replied कि so you do, you smell so, कि आप में इसी तरह की बदबू आ रही है, very very bad, बहुत बुरी बदबू है। What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard। और वो पूछता है What can I do, कि मैं क्या करूं? And he cried very hard, और बहुत जोर से वो रोना स्टार्ट करता है। He started weeping। द विजार्ड, जो शाउटेड, जो कि बेसिक टेल जानती है, तो उसने थोड़ा सा इल मैनर शो किया और शाउटिंग करना शुरू किया कि द विजार्ड, एंड सेट राइट अप, एंड लिटिल गोल्डन बुक स्पिल फ्रॉम द बैग, और कोई गोल्डन क्लेवर की जो बुक है वो स्पिल होती है, नीचे नीचे गिर जाती है। थोड़ा सा एक एक्साइटिंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई लड़की की तरफ से। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी
डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? तो फादर थोड़ा सा उसे इमोशनल करते हुए कि डैडी आपको कहानी सुना रहे हैं, क्या आप डैडी को कहानी सुनाना चाहते हो कि इट्स माई स्टोरी, आई वॉन्ट टेल यू। तो चाहता है कि जो लड़की अच्छा बिहेव करे, चुप रहे एंड लिसन केयरफुली विदाउट डिस्टर्बिंग। नो यू मी, और उसमें बड़े सिंपली कहते नो यू मी, कि आप मुझे, डैडी टेल मी द स्टोरी, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, और वो उसे फोर्स करता है कि लाई डाउन बी स्लीपी, ट्राई टू स्लीप। हर हेड रिलैप्स ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। तो सी रिलैप्स बैक ऑन द सेम पोजिशन, जिस कंडीशन में पहले थी उसी पोजिशन में वो दोबारा से चली जाती है पिलो के ऊपर, और कहते हैं आउट ऑफ योर हेड, कि आप इमेजनरी का स्टोरी सुना रहे हैं। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड। क्या स्टोरी तो सेम ही है, कि लास्ट में आउल ने सोचा, थॉट किया और कहा कि व्हाई डोंट यू सी द विजार्ड, क्या विजार्ड से मिलिए। डैडी व्हाट, किस द सेम स्टोरी अगेन। तो बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे बॉर फील करता है। आर मैजिक स्पेल्स रियल, तो यहाँ स्टोरी से उनका जो ध्यान है वो नहीं रहता, बल्कि वो डिफरेंट चीज़ों में क्वेश्चनिंग, जो उनकी क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है बच्चों की। तो कहते हैं आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि क्या मैजिक स्पेल रियल होते हैं, जो मैजिक वर्ड्स हैं जिसमें पावर होती है चीज़ों को चेंज करने की, क्या वो रियल है। दिस वॉज ए न्यू फेज, और एक नया फेज स्टार्ट होता है एक चाइल्ड के अंदर। जस्ट दिस लास्ट मंथ ही इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ए रियलिटी फेज, जब बच्चा जानने की कोशिश करता है कि इज इट रियल, क्या ये सही है, क्या ये सच है। वेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, और जब फादर अपनी डॉटर को बताते कि स्पाइडर्स ईट बग्स, बग्स को जो इंसेक्ट्स उनको खा जाते हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड डू द रियली, तो बच्चा उसको कंफर्म करता है। अगर फादर ने बताया तो मदर से कंफर्म करता है, और मदर ने कोई बात बताई तो फादर से या अदर मेंबर ऑफ फैमिली से डिस्कस करके उसको कंफर्म करते हैं। एंड वेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जो क्लेयर, जो उसकी मदर उसे बताती है कि गॉड वॉज इन द स्काई, जो ईश्वर है वो स्काई में होता है और हमारे चारों तरफ रहता है। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद स्लाई येट ईगर स्माइल, इज इट रियली, तो वो अपने फादर से भी कंफर्म करती है, एक स्लाई यहाँ पे, स्लाई हिडन एक प्रकार से, लेकिन ईगर स्माइल, एक बड़ी क्यूरियस स्माइल चेहरे पे, कि इज ही रियली अराउंड अस, ही मीन्स गॉड, क्या जो गॉड है वो वास्तव में हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ रहता है। दे आर रियल इन स्टोरीज, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, दे आर रियल इन स्टोरीज। जैक आंसर कर्टली, जैक ने कर्टली आंसर किया विदाउट थिंकिंग मच, कि वो स्टोरीज में रियल होते हैं। शी हैड मेड हे मिस ए बीट इन द नैरेटिव, और यहाँ उसने डिस्टर्ब किया थोड़ा सा, और उसके नैरेटिव में, उसकी जो स्टोरी टेलिंग है उसमें एक बीट मिस हुई, उसका जो एक एंथुजिज्म था कहानी सुनाने का वो मिस हुआ। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प और द क्रेक, तो यहाँ पे पाथ बताया गया, रास्ता बताया गया कि सीधा डार्क वुड्स में जाओ, गहरे जो डार्क वुड्स हैं, जंगल है जो आपका, वहाँ से आप आगे बढ़िए। अंडर द एप्पल ट्री के अंडर से, नीचे से, इनटू द स्वैम्प जो मायर होता है, जो एक प्रकार से आप कीचड़ कह सकते हैं, दलदल कह सकते हैं, और द क्रीक, और क्रीक के ऊपर से जो स्मॉल रिवर होती है उसके ऊपर से। व्हाट्स ए क्रीक, अब बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया कि व्हाट्स ए क्रीक, क्रीक क्या होता है। ए लिटिल रिवर ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहां पे आपको विजार्ड का हाउस मिलेगा। एंड दैट्स द वे रोज स्कंक वेंट, तो जो वे बताया गया, पाथ बताया गया, उसी को फॉलो करते रोज स्कंक पहुंचता है विजार्ड के पास में। एंड प्रेटी सून ही केम टू ए लिटिल व्हाइट हाउस एंड ही रैप ऑन द डोर, और वहां पे डोर पे रैपिंग करता है, नॉकिंग करता है, दरवाजा खड़खड़ाया, जिस दरवाजे पे पहुंचा, प्रेटी सून बहुत जल्द पहुंच गया। जैक रैप ऑन द विंडो सिल, जैक भी अपना एक इफेक्ट क्रिएट करता है स्टोरी टेलिंग का, जाके रियलिटी लगे उस बच्चे को, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, तो रैप ऑन द विंडो सिल पे वो रैपिंग कर रहा है, नॉकिंग कर रहा है। एंड अंडर द कवर जोज टॉल फिगर क्लेंच इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, तो बच्चे की जो इन्फेंटाइल लाइक ए चाइल्ड जो थ्रिल होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो फिगर क्लेंच हो गया, थोड़ा टाइट हो जाती है फिगर एक्साइटमेंट में। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और एक छोटा सा ओल्ड मैन वहां से निकलता है उस व्हाइट हाउस से,
विद ए लॉन्ग वाइट beard एंड ए पॉइंटेड ब्लू हेड। एक लॉन्ग वाइट beard है, उसकी beard है, थिक beard है, दैट इज वाइट, एंड पॉइंटेड ब्लू हेड, पॉइंटेड ब्लू हेड उसने पुट ऑन की हुई है। एंड सेड, ई व्हाट इज वॉचर वांट, कि व्हाट इज वॉचर वांट, व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ वर्ड्स थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग क्या है कि क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट। यू स्मेल ऑफुल, टेरिबल स्मेल आ रही, तो ऑफुल वर्ड यूज किया। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट। तो विजार्ड की जो साउंड थी वो भी जैक ही प्रोनाउंस करता है, जैक की अटरिंग कर रहा है, तो एक उसका एक फेवरेट इफेक्ट था कि ओल्ड जो विजार्ड है उसकी साउंड निकालना बड़ा पसंद करता है। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आईज। तो अपने फेस को स्क्रंच करता है, खींच करके थोड़ा उसको बोलता है, और समहाउ विनिंग थ्रू हिज आईज, और आईज विनिंग करते हुए, विच फेल्ट, आईज को हम थोड़ा सा खींचते हैं, उन्हें टच करते हैं तो विनिंग होता है। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, और आफ्टर इंटरवल जब थोड़ा स्टोरी टेलिंग में जब ब्रेक होता है तो र्यूमी फील करती है। र्यूमी स्मॉल जो डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज होता है आईज से, वो आफ्टर सम टाइम र्यूमी बन जाता है, लाइक ए नॉट, एक गांठ सी बन जाती है, टाइट हो जाता है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम, और वो फील करता है कि ओल्ड मैन उसे शूट करता है, उसकी जो साउंड है वो अच्छी निकालता है वो। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। तो रोजर स्कंक यहाँ पे कहता है कि अपनी प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम्स की है कि एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, एंड द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। वाइज आउल ने उसके को, जो कि इनॉर्मस है, बिग इन साइज है, ह्यूज है, उसने सजेस्ट किया कि यू कुड हेल्प हिम। ई वेल मे बी कम ऑन, की ओके दैट्स ओके, कम ऑन इन, अंदर आइए, डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा नज़दीक नहीं आना आपको, नाउ इन साइड, अंदर आइए, जो देवर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, तो वहाँ उस हाउस में सभी मैजिक थिंग्स थी, ऑल जम्बल्ड टुगेदर, तो एवरीथिंग वाज जम्बल्ड, नॉट इन ए प्रॉपर पाइल एप्पल पाई ऑर्डर, और पाइलिंग, पाइल अप नहीं थी चीज़ें, ठीक से मैनेज नहीं थी, सब जम्बल्ड है। इन ए बिग डस्टी हीप, एंड इट लुक्स लाइक ए डस्टी हीप, लाइक ए गार्बेज, एक ढेर बना हुआ है डस्ट का। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि अब क्वेश्चन ये क्यों है गंदा, डर्टी हीप क्यों है घर उसका, क्योंकि विजार्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं है, देयर इज नो वन हु कैन क्लीन द हाउस। वाई बिकॉज ही वॉज विजार्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन। तो बच्चा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं है, और फादर ने उसको आंसर किया कि बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड, क्योंकि वो विजार्ड है और वेरी ओल्ड है। विल ही डाई, नाउ द क्वेश्चन इज, बच्चों का क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है, विल ही डाई, कि क्या वो मरेगा कभी। नो विजार्ड डोंट डाई, और फादर ने थोड़ा सा उसमें ऐड किया, विजार्ड डोंट डाई, विजार्ड नहीं मरते। वेल ही रमीज अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वैंड, उसने रमीज किया यहाँ पे, खंगालना जो ना, बाय पुटिंग थिंग्स हियर एंड देयर, चीज़ों को सर्च करते हुए, चीज़ें हम इधर उधर फेंकते हैं, वो रमीज कहलाता है, सर्च करना इन सिंपल वर्ड्स। और एक मैजिक स्टिक वहाँ से निकली, एक मैजिक बैंड जिसे हम बोल सकते हैं, वो चीज़, एक बैंड निकला, जादुई जो स्टिक होती है। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और रोजर स्कंक से पूछा गया कि किस तरह की स्मेल उसे चाहिए, किस तरह की स्मेल उसे चाहिए। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस, रोजर ने सोचा और फिर कहता है कि रोजेस स्मेल, मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। यस गुड, जो सेड स्मगली लाइक स्माइलिंग, जो ने बड़ी स्माइलिंग फेस से कहा कि यस गुड, रोजेस स्मेल इज क्वाइट गुड। जैक फिक्स हर विद ए ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। तो जैक ने एक ट्रांस लाइक गेज कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, मेक हर नॉट टू मूव, एंड चैंटेड एंड sang द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, इरिटेबल वॉइस में कुछ वर्ड्स वहां पे चैंट किए। व्हाट आर दीज, क्या वर्ड्स हैं वो, आब्रा कडाब्रा,
Hocus poo. Roger skunk, how do you do? Roger's boss says, pull on here, Roger skunk, you never fear. Bingo. So this was the tag by Roger skunk by Jack himself. That's all for today. We will discuss the remaining chapter in our next part.